for biology especially. So biology, what you guys have to do, you have to write in points. And whenever some question is asked to you for 4 marks, for 3 marks, and some other, then what you have to do is you have to write one more point, one more extra point. Am I clear? And if we see, then two students. Actually, last time, not to this exam, I'm not talking about the present exam that held on the last Sunday. I'm asking about the very first exam. Who scored the max marks, highest marks? Who scored the highest marks? Nobody remember? Ma'am, Megha. Okay. How much you scored, Megha? Ma'am, 47.5. Okay. Okay. So this time, if we see to Megha, you are scored very less, means it is not a good marks, but your representation is very nice. I'm happy with your representation. So now what you guys have to do, you always from the next time, whenever the exam will be going to held, you have to write in points, and for 5 marks you need to elaborate as much as you can. And if you know any pictorial diagram for that, just draw that, because it gonna enlighten your answer. Okay. Now then, if I'm talking about Sanika, then you have to, when you write in points, you have to leave some space between 2 points. If I'm talking about Preeti, then again you have to write in points. And for Pratiksha, you have to write in points and you have to write more. Don't write specifically. If you are asked for 3 marks, write 4 points for it. Then Neha, you have to practice, because you're not, I can, according to your answer sheet, I can feel that you know, almost you have enough knowledge, but you are not able to present that. So work on that part. Then Megha, yes, good presentation. Then Gayatri, also you have to write in points. Then Athar, good presentation. Or else, because whom I feel like a good presentation, yeah, something good in that, I've already given a remark to that on that answer sheet. So this is all about the last exam. Do you have any doubt in that exam? Yeah, any topic you have feeling doubt in that? Ma'am, If not, last question I didn't understood. Last what was question that exam. that question? Just tell me. Oh, I remember that was of what happens on the 14, 15, and 20 and 21 days, and the 23 and 24 days, right? Yes, ma'am. What we had to write in that I didn't understood. Okay. See, for 5 marks, when such question arises, then what you have to mention, what you need to write in that is, first of all thing, they have given you the diagram about it. Have you seen it? Yes, ma'am. Yeah. So according to that diagram only, or जो वो diagram था, in that what they mentioned about the levels of LH and FSH, right? So there you, since it asked, see, I put 2 questions related to that. One question I put for, I think for no, for 5 marks only I put 2 questions. But in the first question that I put for 5 marks, there are 3 sub questions in that. Am I right? So there you have to write accordingly. But if I ask all question based on that graph only, then you need to mention what is the level of FSH, and what is the level of LH. Also, what happened, what is the impact of that FSH on the cycle, what is the impact on LH on that cycle. Am I clear? So Yes, ये ma'am. चीजें आपको लिखनी है उसमें. एंड स्पेशली जब 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ना, ट्राई इफ, जनरली 5 मार्क्स के क्वेश्चन वो होते हैं जिनमें आप पिक्चर बना सकते हो, या फिर
कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। तो पॉइंट्स तो आपको मेंशन करने हैं। अगर पॉइंट्स ज़्यादा नहीं है पर हमें आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं, देन यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम प्रॉपर्ली। बिकॉज डायग्राम से अगर आपको पॉइंट्स भी नहीं रिमेंबर हो रहे हैं, अगर आपने डायग्राम भी बना ली तो एग्जामिनर को एक आइडिया मिल जाता है कि यस स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ गया। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग पॉइंट्स वो उस डायग्राम को देख के आपको पॉइंट्स दे देता है। ओवरऑल तो परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, बट आई वांटेड दैट not only 3-4 students should like presently only 3-4 students are able to cross above 40 from 50, so I want rest also to cross 40. Okay, so इस चीज का ध्यान रखना है। and for the tomorrow's exam जो होगा, so उसके लिए those who are especially those who are going to give the NEET in the next year, so for them if you have any reference book that just follow it, go through that. Otherwise this NEET exam won't be that tough. I won't be giving that level of questions, but yes, whichever mostly questions coming in the NEET exam, I'll be putting those questions. Okay, now the most importantly, whichever chapter I done the whole reproduction wala chapter, that is from first, second, we done with the first part of the 12th syllabus. Now we are dealing with the second part of it, that is principal basis of inheritance. We'll be going to complete this chapter today itself, and we'll be starting with the new chapter, that is the molecular basis of inheritance. But the whatever the basic roots in this chapter, we should be clear with it. Am I clear? So next thing, आपको क्या करना है कि अभी तक जो मैंने भी पढ़ाया है उसमें अगर कोई भी डाउट है तो मुझे अभी बता दो, so that I'll revise that point and I'll quickly move ahead. Ma'am, in this chapter, Yeah. ma'am, the law of independent assortment. Okay. Anything else? Anything else? किसी को कोई डाउट नहीं अथर्व के अलावा? No one? अच्छा, truly tell me, have you all gone through the topics that we had in the last lecture? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Means nobody is having doubt except Atharv, so we'll quickly revise that part, that is the law of independent assortment. See, आपको इस chapter में किस चीज पे point करना है, किस चीज पे आपको emphasize करना है. So most importantly, crossing. If you are able to know about what is the genotype, phenotype, what are the dominant character, what are the recessive character, then you would be able to comfortably answer the question. See, लॉ ऑफ पहली बात तो इनमें तीनों लॉ भी लर्न होनी चाहिए, बिकॉज दे गोना आस्क यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम. सो इसके लिए ना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कुछ नहीं बोलता है. एक्सप्लेन यू दैट लॉ एज वेल एंड देन विल सी द डायग्राम. सो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक बार जस्ट क्विकली रीड कर लो एंड जस्ट एक बार रीड कर लो, सो दैट आई विल एक्सप्लेन यू. डन? सबने पढ़ लिया? विल नीड टाइम. Done everyone? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. ओके. सी, ये लॉ अपने आप है तो एक ही लाइन का लॉ, बट जो आपका ये क्या बोल रहा है कि जब मैं क्रॉस करती हूँ, क्रॉस करने के बाद डेफिनेटली अगर मेरा डोमिनेंट और रिसेसिव को क्रॉस करती हूँ तो इट डजंट मीन दैट मुझे डोमिनेंट ही मिलेगा. अगर मैं रिसेसिव के साथ क्रॉसिंग कर रही हूँ तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू गेट द हाइब्रिड ऑफ बोथ. सो देयर ये क्या बोल रहे हैं कि इफ आई कंपेयर या इफ आई क्रॉस्ड two pairs of a trade, so I'll get some product. That product will be the hybrid. So he is telling to say that कि जो भी वन पेयर का, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉल का जो टॉल और डॉफ लेंगे तो जब मैं उनका क्रॉसिंग कर रही हूँ देन व्हाट आई एम गोइंग टू गेट हाइब्रिड टॉल. सो हियर this man is trying, the scientist is trying to say that both will trying to show their character, but वो दोनों अपना कैरेक्टर शो करने की कोशिश करेंगे. both will be independent of each other, but the one who is dominant will be expressed or the one which is recessive will be suppressed. This is what it want to say. But now here, see, now this question should arise in your mind, then what is the difference between the first law and the third law? The difference is that third law में they compare the two traits, and in the first law they compare the one trait. Now see this diagram. This diagram में we talked about the round yellow seed
and wrinkle green seed. So इसमें आप लोगों को ध्यान में रखना है कि we first took gametes, then we did the gamete formation, when we did the crossing, what we got, capital R, capital small r, capital Y, small y. So now after this I have to perform the F2 generation, I have to perform the F2 generation की crossing. So for that what I should do, I need to do the selfing. Selfing का मतलब होता है crossing with self. Now first I have to what I need to form the gametes. For formation of gametes, what I will do? First, I will multiply this capital R with capital Y, capital R with small y, the small r with capital Y and small r with small y. These all जो भी crossing से ये इससे जो मुझे gametes मिले, these will be my gametes. And after that, I will do the crossing. And after crossing, you all have to observe one thing. What is that thing? If I go on see the phenotypes, if I go on seeing the phenotypic ratio, then what I'm going to observe, I'm going to observe which is the, if in this diagram, if I'm observing, then what is dominant, what is expressing, then capital R and capital Y is expressing. If I go to this diagram, in this small r is also available, but the dominancy comes over here. That's why both are, everyone is independent of each other, but जो dominant है वो ही represent हो रहा है. इसीलिए यहाँ पे सबका जब मैंने phenotypic ratio निकाला, that time I got 9:3:3:1 ratio. ये बोलता है थर्ड लॉ. थर्ड लॉ क्या बोलता है? जस्ट कि जब मैं किसी पेयर को क्रॉस करता हूँ, कंबाइन करता हूँ एक हाइब्रिड बनाने के लिए, तो कैरेक्टर एक ट्रेड का इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर ट्रेड. ये बोलने की कोशिश करें. एम आई क्लियर नाउ? Yes, ma'am. Clear, no doubt. So shall I move ahead? Yes, ma'am. So now the one more important topic is there. In the last chapter we also talked about a thing called sex determination, isn't it? In that we discussed sex determination in respect to human beings. Okay, so now in this topic, means in this sex determination topic, we will be discussing the sex determination or sexes of other plants, other animals as well. We will be discussing about birds, we will be discussing about fishes, what is the sex determination in them. So first of all, we all know that when this sexes are determined, once the zygote is formed, after that only we determine the sex of a organism. This is what called sex determination. And firstly the scientist named Henkin, he was in 1891, what he did, specified the nuclear structure. There he tried to analyze that in which structures sperms are present, in which not. So he observed that 50% of structure में sperm is present and 50% of structure में sperm is not present. So he said कि sperm मतलब कि it contain XY chromosomes, right? So he said that structure as a X body, and that X body को we call today as a X chromosome. Now we will see the sex determination in some animals like grasshopper, then fowls, birds and fowls, then human beings, and last is the honeybee. Honeybee, ये 4 जो है ना, 4 different organism, इनके अंदर sex determination के बारे में we will be studying. So first is the sex determination in the grasshopper. So first of all, grasshopper में like I'll explain you आगे human beings का कैसा है, but अभी ये समझ लो XX और XO. O is nothing but Y is not present, उसकी जगह O है. It is nothing but this XX is what? These are the autosomes. ठीक है? And this is the sex chromosome. Now remember this egg bears one X chromosome along with the autosomes. Okay, now you need to think of ponder one thing, that some sperm bears 50, मतलब some sperm मतलब 50% of sperms
bear on X chromosome while 50% do not. इसका मतलब क्या है कि there is one error. Yeah. So 50% स्पर्म के पास X क्रोमोसोम है और 50% के पास नहीं है. तो जो X स्पर्म से फर्टिलाइज्ड होगा, if such type of thing come, autosomes, see XX क्या होगा, फीमेल का होगा, और XO क्या होगा, मेल का होगा. And this A represented what? This A represent the autosomes. So AA plus XX will be the chromosomes or the pattern of the female in which the egg fertilized with the sperm. And if egg fertilized with the sperm without X chromosome, if X chromosome is not available, then what I'm going to get is AA and XO. This is for grasshopper. You'll be going to know much clearly from this. Now, mammals में तो आपको पता है कितने ऑटोजोम्स होते हैं. मैम ए क्या है यहाँ पे? यहाँ पे AA ऑटोजोम्स है. तो मुझे एक बात बताओ, ये पहले मुझे बताओ कि ऑटोजोम्स कितने होते हैं और क्रोमोसोम्स कितने होते हैं. अच्छा, मुझे एक बात बताना, हम लोग बोलते हैं ना 46 क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमोसोम्स बोलते हैं. तो 46 में 44 हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 44 प्लस 2. यस मैम. तो ये 44 कौन हो जाएंगे, ये ऑटोजोम्स हो जाएंगे. और अगर XX लिख रही हूँ तो 2 हो जाएंगे तो 2 हो जाएगा ना. सो दिस XX इज व्हाट, फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम्स है. समझ में आ रहा है? देखो, यस मैम. जब मैं ह्यूमन बींग से समझ लो, क्योंकि वी नो दैट द ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं. ठीक है, सो 2 पेयर्स होते हैं इसलिए हम 23 पेयर्स बोलते हैं, नहीं तो वैसे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. 46 क्रोमोसोम को अगर मैं फीमेल के लिए लिखूंगी तो 44 प्लस XX लिखूंगी, अगर मैं मेल के लिए लिखूंगी तो 44 प्लस XY लिखूंगी. समझ में आया? तो दैट 44 is what autosomes are there and 2 are the sex chromosome. Am I clear? So यहाँ पे वही चीज यहाँ पे है. देखो यहाँ पे ग्रास ऊपर में क्या है कि Y is not present. Instead of Y, they represented it with the O. That's why यहाँ पे AA is autosomes, the number of autosomes, and XX is the female. It represents the female sex chromosomes, and it represents the male sex chromosomes. Got my point? Okay, next thing. यही दे रखा है यहाँ पे. सिंस मेल में XY क्रोमोसोम होते हैं तो आई कॉल्ड इट एज अ हेटेरोगेमिटी, एंड फीमेल में XX क्रोमोसोम होते हैं, बोथ आर द सेम, सो आई कॉल्ड इट एज अ फीमेल होमोगेमिटी. एम आई क्लियर? I just want to highlight this thing. Okay, now we'll talk about the sex determination in birds, fowls and fishes. Keep in mind, birds, fowls and fishes में देखो, फीमेल्स में बर्ड्स के पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मेल सॉरी ह्यूमंस और बर्ड्स में ये डिफरेंस है. मेल में सॉरी ह्यूमंस में क्या होता है, मेल में हेटेरोगेमिटी होती है ना, तो यहाँ पे फीमेल्स में हेटेरोगेमिटी होती है. सो फीमेल बर्ड्स हैव 2 डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम. यहाँ पे डिफरेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. 2 different sex chromosomes that is designated with Z and W. Okay, and here if you see, then male bird have 2 similar sex chromosomes, that is Z. So जो हमारे humans में XY होता है, यहाँ पे ZW है. ठीक है, sex chromosome, और मेल में ZZ. तो if I go on making the what we gamete, then Z into Z will be the Z, then that is ZZ मतलब मेल का ऑटोजोम्स हो जाएंगे this, plus ZZ will be the males, and for female के लिए ZW. ठीक है, now so if I see for the male, then male is what, homogamy, और female क्या है, heterogamy है. तो ये चीज याद रखना है, किसमें है heterogamy, किसमें homogamy. चीज ध्यान में रखनी है. समझ में आया? नाउ
ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। ओके, ये बहुत समझना है, इम्पोर्टेंट। अभी ना मैं एक सेंटेंस बोलूंगी, इसमें दे डोंट हैव, इसमें क्या होता है पता है, सन हैज ग्रैंडफादर, ठीक है, अ सन हैज अ ग्रैंडफादर बट नॉट फादर, ठीक है, ग्रैंड सन होगा बट फादर नहीं होंगे। देखो कैसे, अभी पहले समझो इस चीज को, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। इसमें ना जो हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, इनमें क्या होता है, पहले बात तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो फीमेल होती है वो आइदर क्वीन होती है या तो वर्कर होती है। एंड के केस में देखा होगा कि क्वीन, वर्कर और क्वीन हो सकती है एक फीमेल। तो क्वीन तो एक ही होती है, बाकी सब वर्कर होती है, इजंट इट। और जो एग ले कौन करता है, क्वीन ही ले करती है एग। सो एक चीज याद रखना कि यहाँ पे अगर ये पूरा कंसेप्ट जो है, पहले we'll go point by point, but after that I'll summarize the thing. So यहाँ पे क्या होता है, if egg is not fertilized, मतलब वो egg अब पूरी तरह से waste नहीं होगा, it will convert into या develop into male sorry, then and that process is called parthenogenesis. पार्थिनोजेनेसिस आप लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पार्थिनोजेनेसिस? मैम फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग विदाउट फर्टिलाइजेशन। एग्जैक्टली, वेरी गुड अथर्व। सो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, एंड दिस अनफर्टिलाइज्ड, इसका मतलब ये अनफर्टिलाइज इटसेल्फ डिफाइन कर रहा है कि पार्थेनोजेनेसिस क्या है। तो जो एग जो फर्टिलाइज नहीं होगा, दैट विल डेवलप इनटू मेल, एंड मेल को क्या बोला जाता है, ड्रॉन बोला जाता है। याद रखना यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम वेरी करते हैं। मेल के पास हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं देन दैट ऑफ फीमेल। फीमेल आर डिप्लॉयड, ठीक है, फीमेल डिप्लॉयड होते हैं। सो हाउ मेनी क्रोमोसोम्स दे हैव 32 क्रोमोसोम्स। तो मेल में ऑटोमेटिकली कितने होंगे, 16 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है, हाफ बोला है तो हैप्लॉइड होंगे। नाउ इसको इसीलिए हम लोग बोला जाता है, इसको इसीलिए हम लोग बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। नाउ एक चीज याद रखना, यहाँ पे मेल्स जो है माइटोसिस कैसे करते हैं, मेल जो प्रोड्यूस करते हैं ना स्पर्म, दे प्रोड्यूस स्पर्म बाय माइटोसिस, ठीक है। अभी एक चीज आपको बताऊंगी, वो ध्यान से समझना, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि दे डू नॉट हैव फादर्स, they thus cannot have son but they have grandsons. So ये कैसे हुआ, ये स्टेटमेंट बहुत ही इजी लग रही है बोलने में, बट now I'll try to explain you how it happens. अब देखो, if I would now समझो, suppose there is a egg and there is a sperm, they will fertilize. मैं जैसे बता रही हूँ, if you have having a habit of writing, then try to write what I'm telling. एग है और स्पर्म है, फर्टिलाइज्ड करेंगे, फर्टिलाइज करके क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, एंड दैट जाइगोट की प्लॉइडिटी क्या होगी, डिप्लॉयड है, इसका मतलब वो एक फीमेल ही होगी, उससे फीमेल ही बनेगी, ठीक है। अब ये एक चीज याद रख, तीन होगी, दे ओनली ले एग्स, एंड जो एग्स होंगे उससे उससे विदाउट फर्टिलाइज से वो क्या बनाएंगे, दिस इज they will form male, means drawn, okay, they'll form males and drawn, मेल या उनको ड्रॉन बोलेंगे। अभी देखो मुझे एक बात बताओ, जो ऊपर मेल और फीमेल ने फर्टिलाइजेशन किया था, ठीक है, मतलब एग और स्पर्म ने, तो क्वेश्चन आना चाहिए वो स्पर्म कहाँ से आया होगा। तो स्पर्म जो है वो मेल से आया होगा। तो अभी एक चीज याद रखो कि जो अभी मेल है और इससे पहले जब स्टार्टिंग में स्पर्म बना था, do one thing, you might not be understood this thing, I'll make a diagram and I'll send that on the group, is that okay? देखो इसमें ना अगर समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे फादर्स नहीं होंगे,
फादर्स नहीं होंगे तो सन्स नहीं होंगे, लेकिन दे आर हैविंग ग्रैंड सन्स एंड ग्रैंड फादर। सो ये कैसे होता है, आई विल शो द डायग्राम। ठीक है, अभी समझते हैं नेक्स्ट। तो आप लोगों को सेक्स डिटर्मिनेशन में ग्रास होपर का याद रखना है, ह्यूमन मैमल्स का याद रखना है, देन आपको याद रखना है बर्ड्स, फाउल्स एंड फिशेस का याद रखना है, एंड लास्ट दैट इज ऑफ हनी बी। हनी बी का पूछा जाता है जनरली फॉर 3 मार्क्स, व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ हैप्लोडिप्लॉइडिक फर्टिलाइजेशन सेक्स डिटर्मिनेशन। सो अभी ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं दैट इज द, am I audible? Am I audible? Am I Yes. audible? Yes, ma'am. अभी जो टॉपिक करने वाला है, स्क्रीन विजिबल है ना सबको? स्क्रीन Yes, ma'am. विजिबल है? Yes, ma'am. हाँ ठीक है। तो अभी जो ये टॉपिक करने वाला है दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। बट एक चीज आपको ध्यान में रखनी है दैट ये जो वर्ड है म्यूटेशन, आप लोगों ने सुना होगा बहुत, मतलब बायोलॉजिकल टर्म में बहुत सुना होगा, म्यूटेशन हो गया, इस जीन के म्यूटेशन के कारण ये डिजीज हुई, ये डिजीज हुई। तो व्हाट एग्जैक्टली दिस टर्म मींस, व्हाट इज म्यूटेशन? सो देखो, हमारा जो जेनेटिक पूरा जेनेटिक मटेरियल क्या है, दैट इज डीएनए, और डीएनए की सीक्वेंसिंग होती है। अभी मे बी आपको एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा, बट जो मॉलिक्यूलर बेसिस चैप्टर है उसमें आपको हिस्ट्री सीक्वेंसेस की, क्या डीएनए के सीक्वेंसेस है, ठीक है, कैसे सीक्वेंसेस होते हैं। तो अभी इतना याद रखो कि डीएनए के बहुत बड़े सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है। वो एक कोडॉन होता है, कोडॉन मतलब बहुत सारे कोडॉन एक सीक्वेंस बना होता है। सीक्वेंस मतलब क्या, एक एक कोड होगा जो वो आपको आई को रिप्रेजेंट करेगा, एक कोड होगा जो आपके आई के कलर को रिप्रेजेंट करेगा, एक कोड होगा आई के शेप को रिप्रेजेंट करेगा। सो ईच एंड एवरी कोडॉन जो है उसमें दे विल डिपेक्ट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो अगर किसी भी सीक्वेंस में अगर अल्टरेशन भी हुआ, अल्टरेशन मतलब सीक्वेंसिंग की अदला बदली भी हुई, ठीक है, या कुछ भी उसमें चेंज हुआ, तो उस चेंज के कारण जो भी अफेक्ट होगा, जो भी उसका इफेक्ट होगा, दैट इफेक्ट विल बी नथिंग बट द म्यूटेशन। यही आपको इंग्लिश टर्म में दिया हुआ है कि अल्टरनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस। इमीडिएटली देखो, जब ना हम लोग सीक्वेंसिंग करते हैं तो उसको नेमिंग दिया जाता है, डिफरेंट अमीनो एसिड से नेमिंग दिया जाता है। तो अगर वो सीक्वेंस, अभी मुझे बताओ, सपोज एक बड़ा सा सीक्वेंस है जिसमें बहुत सारे अमीनो एसिड है, सपोज देयर इज वन स्ट्रिप जिसपे मैंने लिखा है 1 से लेकर 10 तक। So every number, every digit will have some of its function. So if I change 3 by 4, will that 4 will perform the function of 3? No, I had assigned some different work to 3 and 4 respectively. So आपको ध्यान में रखना है कि थोड़ा भी सिमिलरली डीएनए सीक्वेंसेस होता है। डीएनए में डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं, डिफरेंट कोडॉन्स होते हैं, और वो कोडॉन्स डिफरेंट कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहां पे अगर कोडॉन नंबर 16 है और 17 है, अगर 16 को 17 से बदलूंगी तो फंक्शन टोटली डिफरेंट हो जाएगा, टोटली उसका जीनोटाइप है, फिनोटाइप बदल जाएगा। So that would be the something resultant change in that DNA. So that is nothing but the mutation. Now एक चीज याद रखना है कि even in addition, even in recombination, म्यूटेशन एक अनदर फिनोमेना है जिसके कारण वेरिएशन आता है। किसमें वेरिएशन आएगा? डीएनए के सीक्वेंसिंग में। देखो, आपने एक टर्म सुना होगा, जब अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है फर्टिलाइजेशन, तो 11th में हमने पढ़ा होगा कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना तो जाइगोट बनता है। तो वो जाइगोट के आगे जो सेल डिवाइड्स होते हैं तो वो क्रोमोसोम का क्या होता होगा, 6 क्रोमोसोम जो फ्यूज हुए हैं, जाइगोट बनना है तो उसके अंदर कुछ तो मैटर है, उस मैटर का डिवीजन कैसे होता होगा? सो उस मैटर का डिवीजन किस तरह होता है, वो रिकॉम्बिनेशन करते हैं। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि अभी मेल की तरफ से क्या आए हैं, हेप्लॉइड हेप्लॉइड आए हैं, देन 23 आए होंगे, इधर से कितने आएंगे, 23 आए होंगे,
सो अभी 46 हुए तो उनमें डिसाइड होता है वेदर इट वुड बी मेल, वेदर इट वुड बी फीमेल। सो अभी जो 46 ऑटोजम्स 44 एंड 1 सेक्स क्रोमोसोम है, सो उनके अकॉर्डिंग एक एक चीज सेग्रीगेट होती है, एक चीज इधर जाएगी एक चीज इधर जाएगी। सो उनमें फिर क्रॉसिंग होती है, क्रॉसिंग के बाद अगेन क्रॉसिंग होती है। तो अल्टीमेटली इट इज नथिंग बट द रिकॉम्बिनेशन, वी आर कंबाइनिंग अगेन एंड अगेन, सो दैट लीड टू वेरिएशन इन द डीएनए। सो ऑटोमेटिकली रिकॉम्बिनेशन के साथ साथ म्यूटेशन भी क्या करता है, डीएनए की सीक्वेंसिंग में चेंज लाता है। चेंज इज नथिंग बट द वेरिएशन इन द डीएनए। नाउ एक चीज याद रखना, अगर कुछ भी अगर डीएनए की सीक्वेंसिंग में अगर सपोज 1 to 10 लिखा है, सपोज इट इज नॉट द सीक्वेंसिंग बट सपोज अगर 1 से 10 लिखा है, सो अभी तो 10 नंबर्स है मेरे पास। इफ आई remove the 10th number from 1 to 10 number, so how many numbers will be left with me? 9 numbers. How 9? Because one number is deleted, so that is nothing but the deletion, no? And if there are 10 numbers and if I add one number to it, then it will become 11 number. So now here, now what happened? Addition, insertion, I add something in, I inserted something. इसका मतलब यह है कि अगर सीक्वेंसिंग में डीएनए की सीक्वेंसिंग में मेरा अगर कोई एक कोडॉन या एक अमीनो एसिड चला जाएगा तो दैट वुड बी लूज, और इफ वन मोर कोई एक अमीनो एसिड आ जाएगा तो दैट वुड बी insertion or duplication of the segment of DNA, so that result in alternation of the chromosome, that will change the chromosome sequencing. Now remember one thing, that disease can cause due to mutation, ठीक है। सो अगर मैं क्रोमोसोम ये कैंसर सेल्स देखो तो कैंसर सेल में क्रोमोसोमल एब्रिएशंस होती है। क्रोमोसोमल एब्रिएशन मतलब सीक्वेंसिंग में ही चेंजेस हुए होते हैं। नाउ एक चीज याद रखना, अगर सिंगल बेस पेयर, नाउ व्हाट इज बेस पेयर ये भी आपको समझ में आएगा, बट आप इतना समझ लो कि डीएनए के एक सिंगल बेस पेयर पे अगर कोई चेंज आया है तो उसको मैं बोलूंगी सिंगल सेल, उसे मैं बोलूंगी पॉइंट म्यूटेशन, बिकॉज सिंगल पॉइंट पे चेंज आया है। सिंगल पॉइंट के इंसर्शन या डिलीशन, सो इंसर्शन या डिलीशन, ठीक है, इसके कारण अगर कोई चेंज आता है, सो आई कॉल दैट एज अ पॉइंट म्यूटेशन, बिकॉज वन पॉइंट के कारण चेंज आया है ना। सिमिलरली अगर कोई सेट ऑफ सीक्वेंस में चेंज आता है, सेट ऑफ सीक्वेंस चेंज हो रहा है, then I'll call that as a frame shift mutation. Now क्वेश्चन ये आना चाहिए कि म्यूटेशन होता कैसे है। आप लोगों ने सब देखा होगा कि आप लोग कहते हो कि यूवी रेज हार्मफुल होती है, सन की रेज हार्मफुल होती है, यूवी प्रोटेक्टिंग की डिफरेंट क्रीम्स वगैरह आती है। व्हाई? यूवी इज नथिंग बट अ म्यूटेशन, मतलब कोई भी व्हाट आई कैन से, कोई भी थिंग हो जिससे आपको एलर्जी हो रही है, जिससे आपको म्यूटेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द म्यूटेजन। क्या बोलेंगे उसको? म्यूटेजन। समथिंग केमिकल और फिजिकल फैक्टर्स दैट इंड्यूस म्यूटेशन, उनको हम बोलेंगे म्यूटेजन। क्या बोलेंगे? म्यूटेजन। नाउ एक और चीज, नाउ ये आपको समझ में आ गया म्यूटेशन क्या होता है। अभी एक यहाँ पे एक टर्म आता है जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जेनेटिक डिसऑर्डर समझने के लिए हमें पहले पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, ये पेडिग्री वो डॉग का फूड नहीं है, रिमेम्बर दिस थिंग। पेडिग्री एनालिसिस का मतलब होता है कि पूर्वजों से अभी तक की पीढ़ी में जो जो चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस को देख के जो मैं एक ग्राफ या चार्ट फॉर्म करती हूँ ना, दैट इज नथिंग बट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। मतलब कि एक पर्टिकुलर ट्रेड का रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम योर एंसेस्टर्स टिल नाउ, दैट इज नथिंग बट द पेडिग्री एनालिसिस। नाउ पेडिग्री एनालिसिस में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझने के लिए दो टर्म आएंगे, दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या करना है, देखो ये टर्म्स जो है ना आपको रिमेम्बर करना है, क्योंकि ये जो ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव है ना, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, बिकॉज इसकी मदद से आप लोग कोई एक आपको ये इस तरह का, रुको, इस तरह का ना आपको एक डायग्राम दे दिया जाएगा और आपको बोलेंगे कि हमें बताओ ऑटोसोमल रिसेसिव है या ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए ना ऑटोसोमल रिसेसिव और डोमिनेंट बोलने के लिए।
तो दीज आर नथिंग बट द क्राइटेरिया। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में ये जो क्राइटेरिया ना ध्यान में रख लो। तो क्या है, फर्स्ट अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैविंग एटलीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट। देखो आगे डिजीज के बारे में भी समझाऊंगी एग्जांपल लेके, बट अभी इतना समझ लो कि अगर कोई इंडिविजुअल या ऑफस्प्रिंग समझ लो, कोई ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है किसी डिजीज से, तो उसमें वो डिजीज तब होना चाहिए। ये क्राइटेरिया ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए क्राइटेरिया है कि अगर कोई ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है तो उसमें उसके अफेक्टेड होने के कारण वजह क्या होनी चाहिए, उनका एक आइदर मदर और फादर वन शुड बी अफेक्टेड। सेकंड थिंग फिनोटाइप, फिनोटाइप जो होगा उसका एवरी जनरेशन में यू विल ऑब्जर्व, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, जो अनअफेक्टेड पेरेंट होंगे उनके ऑफस्प्रिंग भी अनअफेक्टेड होंगे। ये जो क्राइटेरियाज है ये आपको ऑब्जर्व करने हैं। जब आपको एक पेडिग्री एनालिसिस देखोगे तो आपको ऑब्जर्व करना है कि डू दे फॉलो दिस क्राइटेरिया। इफ दे फॉलो दिस क्राइटेरिया मतलब वो ऑटोसोमल डोमिनेंट हुआ। अगर नहीं फॉलो करते देन दे वुड बी ऑटोसोमल रिसेसिव। नेक्स्ट थिंग, ट्रेड जो होगा दैट इज कंट्रोल बाय द डोमिनेंट जीन, ठीक है। उसके बाद both male and females are equally affected. नेक्स्ट थिंग है ट्रेड डू नॉट स्किप जनरेशन। इसका मतलब हर जनरेशन में किसी ना किसी कोई ना कोई अफेक्टेड होगा। यहाँ पे आता है पॉलीडक्टाइल, टंग रोलिंग एबिलिटी, मायोटोनिक। तो अभी यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, व्हाट इज टंग रोलिंग एबिलिटी। टंग रोलिंग एबिलिटी अभी घर पे बैठे हो अपने आप ही ट्राई करना, कितने लोग अपनी टंग को रोल कर सकते हैं। some students may not be able to roll, so ये जो है एक तरह से आपके एंसेस्टर से ही आपको मिली है टंग रोलिंग एबिलिटी। मायोटोनिक तो मसल में जो पेन होता है दैट इज कॉल्ड द मायोटोनिक। देन पॉलीडक्टाइल, व्हाट इज दिस पॉलीडक्टाइल? ओके, आई विल गिव यू होमवर्क फॉर दिस। मुझे पता ना पॉलीडक्टाइल क्या होता है, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। नो नीड टू राइट अबाउट इट बट यू शुड टेल मी अबाउट दिस थिंग। नाउ ऑटोसोमल रिसेसिव समझ लेते हैं, फिर मैं आपको रिप्रेजेंटेशन मैम सिखाऊं। हाँ जी, मैम ऑटोसोमल डोमिनेंट में दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड होंगे तो? दोनों पेरेंट अफेक्टेड होंगे तो ऑब्वियसली बच्चा जो होगा वो भी अफेक्टेड होगा। मैम बट यहाँ बोलो मैम बोलो। और अगर अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग चाहिए होंगे तो दोनों भी अनअफेक्टेड होने चाहिए ना? अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग चाहिए तो एक बात बताओ मुझे, अगर पेरेंट्स में दोनों ही अनअफेक्टेड है, ठीक है, अफेक्टेड है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी ऑफस्प्रिंग होगा वो अफेक्टेड होगा। लेकिन अनअफेक्टेड है इसका मतलब ये भी हो सकता है ना कि जो एक्सप्रेस कर रहा है वो डिजीज वो कैरियर होगा। नहीं समझ में आएगा आपको। देखो अगर मैं हीमोफीलिया की बात लेती हूँ ना, या हाँ हीमोफीलिया की बात लेती हूँ, तो हीमोफीलिया में ना जो फीमेल होती है वो कैरियर होती है। फीमेल में वो हीमोफीलिया का डोमिनेंट ट्रेड होता है, वो हीमोफीलिया का ट्रेड होता है। लेकिन वहां पे क्या हो रहा होता है कि जो जिस जिस भी जीन से जिस भी ट्रेड से हीमोफीलिया हो रहा होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स एच, हीमोफीलिया एक्स एच और एक्स। तो जो फीमेल में किस तरह होते हैं, होमोगेमिटी होती है, एक्स एक्स होते हैं ना, तो वहां पे एक्स 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 एच जो है वो हीमोफीलिया को रिप्रेजेंट करता है। बट यहाँ पे वो कैरियर होगी, उससे जो आगे ऑफस्प्रिंग होगी। देखो कैसे होगा, अगर मेल का ले लो, मेल में एक्स और वाई होगा। अगर जो हीमोफीलिया होने का जो ट्रेड है वो एक्स है, जिसके पास एक्स है वही हीमोफिलिक होगा। लेकिन यहाँ पे तो दो दो एक्स है ना अगर फीमेल में, तो फीमेल को हीमोफीलिया कभी नहीं हो सकता क्योंकि दूसरा वाला जो है वो उसको सप्रेस कर रहा है। लेकिन वही एक्स एच वाला अगर मेल में चला गया तो अभी एक्स एच और वाई, तो अभी यहाँ पे तो ये डोमिनेंट हो जाएगा ना, क्योंकि होमोगेमिटी फैक्टर है ही नहीं, यहाँ पे हेटेरोगेमिटी है। तो जो मेल होगा ना, अगर नेक्स्ट जनरेशन में क्रॉसिंग के बाद अगर जाइगोट में एक्स एच वाई आ रहा है तो वो जो ऑफस्प्रिंग होगा, पहली बात तो वो मेल होगा एंड ही वुड बी अफेक्टेड विद द हीमोफीलिया। ये समझ में आया कि अभी जरूरी नहीं है कि दोनों अफेक्टेड पेरेंट का तो होगा, बट अनअफेक्टेड पेरेंट का भी अफेक्टेड सिबलिंग हो सकता है, बट इट इज डिपेंड ऑन चांस ऑफ अपीयरेंस। समझ में आया?
यस मैम। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि देखो अनएफेक्टेड पेरेंट का ओनली हैव अनएफेक्टेड, हाँ अनएफेक्ट का तो अनएफेक्टेड ही होगा, ठीक है। जो पेरेंट्स अनएफेक्टेड है तो उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो भी अनएफेक्टेड होगा, ठीक है। और कोई डाउट है क्या? देखो ये जो है ना टर्म्स अभी ध्यान में रख लो, क्योंकि अभी क्वेश्चन अराइज होंगे ना, इसके बाद आपको डिजीज है तो वो डिजीज धीरे धीरे चलेंगे, बिकॉज इसके बाद डिजीज है तो आपको समझ में आएगा कि हर डिजीज में डोमिनेंट अलग है। डोमिनेंट का मतलब यहाँ पे अलग हो जाता है, इसका मतलब ये है कि जिसके कारण वो डिजीज हो रही है वो डोमिनेंट हो जाता है। आगे समझोगे एट द एंड, अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, आई एक्सप्लेन यू अगेन द सेम थिंग। अभी ध्यान दो, ये ऑटोसोमल रिसेसिव, अनएफेक्टेड पेरेंट कैन हैव अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। अब ये कंडीशन पता है किसकी दिखा रहा है? ये अपना हीमोफीलिया की दिखा रहा है कि अनएफेक्टेड पेरेंट कैन हैव अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। तो ये कंडीशन उसकी हो जाएगी हीमोफीलिया की, बिकॉज पेरेंट्स, इसमें मदर की बात करें तो मदर तो कैरियर है ना, कैरियर है, शी इज अनएफेक्टेड बट शी इज अ कैरियर फॉर दैट डिजीज। और फादर जो है, देखो आप आगे समझोगे, हीमोफीलिया ना एक ब्लड रिलेटेड डिजीज है, ये तो पता है ना आपको। सो हीमोफीलिया में ना मेल्स जो है जनरली नहीं सरवाइव कर पाते, क्योंकि वहां पे जो क्या कहते हैं, ब्लड बनाने वाला एंटीबॉडीज ही नहीं होते। नहीं, हीमोफीलिया में जो आपको कोई भी कट लगता है तो उसको रोकने के लिए प्लेटलेट्स होते हैं, बट हीमोफीलिया में जो जीन होता है ना प्लेटलेट्स के लिए, उसका म्यूटेशन हुआ है वहां पे। तो अभी प्लेटलेट्स का म्यूटेशन हुआ है, तो मुझे एक बात बताओ, नॉर्मल हमारी लाइफ में कट्स तो लगते हैं, तो वो अगर प्लेटलेट्स का जीन ही नहीं है, उसमें म्यूटेशन हुआ है, तो नॉर्मल कट्स पे भी अनवांटेड ब्लड का फ्लो होगा, तो उस इंसान में ब्लड बचेगा कहाँ से? सो ये होती है हीमोफीलिया की डिजीज। आगे मैं बहुत इलेबोरेट करूंगी, पहले ये टर्म्स एंड कंडीशन समझ लो क्या है ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए। ये पता चल गया, अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव एन अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। सेकंड, ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय द रिसेसिव जीन, ठीक है। देन अपीयर्स ओनली व्हेन होमोजाइगस, कंडीशन होमोजाइगस होगी तभी अफेक्ट करेंगे। ये नेक्स्ट डायग्राम है ना, आई विल एक्सप्लेन यू ऑन दिस। ये दोनों जो ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव है, उनकी ये जो टर्म्स एंड कंडीशन कैसे अप्लाई हुई ये देखेंगे। नेक्स्ट थिंग, बोथ मेल एंड फीमेल आर इक्वली अफेक्टेड। नेक्स्ट थिंग है ट्रेट्स मिस स्किप जनरेशन, इसका मतलब अगर एक जनरेशन में वो डिजीज हुई है तो ऐसा भी हो सकता है कि सेकेंड जनरेशन में वो डिजीज ना हो और वो थर्ड जनरेशन में आ जाए। सो देयर आर चांसेस फॉर दैट। देन नेक्स्ट थिंग की रेशियो 3:1 रेशियो बिटवीन द नॉर्मल, अगर क्रॉसिंग के बाद चार क्रॉसिंग मिल रही है तो उसमें 3 जो होंगे वो नॉर्मल होंगे एंड 1 वुड बी अफेक्टेड। नेक्स्ट थिंग, अगर there may be appearance of affected children from the normal parents, so heterozygous condition में ऐसा होता है। so all children of affected parent are also affected, जैसे उसमें unaffected के जो kids offsprings होंगे वो unaffected होंगे, बट जो affected है उनके offsprings जो होंगे उनमें से one of the offspring will be affected। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, अल्बिनिज्म एंड सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव का ट्रेड है। अब ये जो अल्बिनिज्म तो एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, बट सिकल सेल एनीमिया वाज एक्सप्लेन इन योर दिस आगे वाले पार्ट में, दे हैड एक्सप्लेन यू अबाउट दिस। अल्बिनिज्म आप लोगों ने इफ यू हैव सीन या आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो, अल्बिनिज्म का मतलब होता है मेलानिन पिगमेंट जो होता है ना उसका म्यूटेशन हुआ होता है। अब मेलानिन पिगमेंट किस में प्रेजेंट होता है? पढ़ा है ना 11th? वेरी गुड। स्किन में प्रेजेंट होता है मेलानिन पिगमेंट। It makes our skin darker. एग्जैक्टली। सो अभी अगर मेलानिन पिगमेंट एब्सेंट है, म्यूटेशन हो गया, एब्सेंट नहीं म्यूटेशन हुआ है, उसका मतलब ये है कि अभी मेलानिन पिगमेंट उस ह्यूमन में है ही नहीं, तो उस ह्यूमन की बॉडी पूरी वाइट होती है, पूरी वाइट। इवन द हेयर्स आर आल्सो
केराटिन पिगमेंट भी नहीं होगा, जो भी कलरिंग पिगमेंट है ना वो प्रेजेंट नहीं होते। हेयर्स भी पूरे ब्राउनिश होंगे या पेल कलर के होंगे। इवन प्यूपल जो ब्लैक होना चाहिए, someone having that white pupil as well. So melanin pigment मतलब कलर पिगमेंट का म्यूटेशन हुआ होगा। एल्बिनिज्म में ये होता है। इवन द आईब्रोज आर वाइट, everything most of part is white in color. सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि आपका जो आरबीसी होता है ना, आरबीसी का शेप कैसा होता है? मैम बाइलो, बाइकॉनकेव। हाँ मैम, इस बाइको, ठीक है, ठीक है। सो बाइकॉनकेव होता है। तो अभी ये सिकल सेल, सिकल का मतलब क्या होता है? इंग्लिश तो पता है ना आप सबको, तो बताओ ये सिकल का मतलब क्या होता है? मैम फार्मिंग में यूज होता है ना। एग्जैक्टली जो घास वास निकालने के लिए जो यूज होता है, दैट इज कॉल्ड द सिकल। ठीक है, तो सिकल मतलब जो एक बाइकॉनकेव शेप का आरबीसी है, उसका शेप कैसा हो जाएगा? क्रिसेंट मून की तरह हो जाता है। सिकल आपने देखा होगा, उसका शेप कैसे होता है? अगर खेतों में आसपास खेत है तो देख लेना कि वो सी शेप का होता है, डीप सी शेप का होता है सिकल का आगे वाला पार्ट। तो आपका जो बाइकॉनकेव आरबीसी है ना, उसका शेप बदल के सिकल शेप हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है कि इंसान को एनीमिया हो जाता है, खून की कमी होना शुरू हो जाता है, हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन धीरे धीरे कम हो जाता है, नेग्लिजिबल की समान हो जाता है। तो उससे उससे जो डिजीज होती है, दैट इज कॉल्ड द सिकल सेल एनीमिया। दीज आर द टर्म्स ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड रिसेसिव। नाउ यहाँ पे जो मैंने ये डायग्राम दिया हुआ है ना, ये बहुत जरूरी है समझ में आना, क्योंकि आगे जो है ना, तुम्हें पता है क्या किया जाएगा? दे विल डायरेक्टली प्रोवाइड यू दिस डायग्राम और बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायग्राम टेल अस वेदर इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव। तो किसके बेसिस पे? व्हाट इज दिस डार्क कलर रिप्रेजेंट, व्हाट इज दिस लाइट कलर रिप्रेजेंट? सो दीज आर द थिंग्स। अगर ये लाइट देखो, ये डार्क जो ब्लैक से है ना वो डार्क है, ठीक है, और ये सब लाइट कलर्ड है। तो यहाँ पे अगर स्क्वायर बना होगा तो दैट इज द मेल, सर्कल बना है तो फीमेल, अगर वहां पे ऐसा रोम्बस शेप का कुछ बना है तो दैट वुड बी द सेक्स अनस्पेसिफाइड। डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट द सेक्स, वेदर इट इज अ मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। ठीक है, अब ये याद रख लो कि जो भी डार्केंड होगा दैट वुड बी द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। ठीक है, अगर this a line joining the male and female, if such thing happens, if such thing observed, then we called it as a mating हुआ है दोनों के बीच में। then second thing is अगर डबल लाइन आ रहा है, इसका मतलब मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। अभी इसका मतलब क्या है? इवन इन साउथ, मोस्टली इन साउथ पार्ट और इन महाराष्ट्र इवन, व्हाट दे डू, रिलीजन में रिलेटिव्स में मैरिजेस होती है। So that is consanguineous mating उसको बोलते हैं। ठीक है, तो that represent the mating between the relatives. The next thing is ये जो है ना, इसका मतलब होता है कि this is male and female, so this is father and this is mother. इनके mating के बाद they have two offsprings. So this is a female and a daughter and this is the son. ठीक है, so this is the parents and above are the children. ठीक है, next thing is both male and female, so they are parents and they have one son, और वो जो son है that is unaffected ना, the sun is affected because it is darkened in color, so it is affected, but both जो parents है वो कैसे है? unaffected because it is light in color. Now ये जो 5 बना हुआ है ना, ये इसके अंदर रोम्बस के अंदर, तो इसका मतलब पता है कि 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, जो ऑफस्प्रिंग्स है, जो 5 ऑफस्प्रिंग्स होंगे दे आर अनअफेक्टेड। ये डायग्राम अच्छे से याद रख लो। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आओ, ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव। अभी पहला है ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट में पहला ट्रेड हम लोगों ने, पहली क्राइटेरिया या पहला पॉइंट क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैव एटलीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट। अभी तो मुझे देखो, ये पहले मुझे बताओ, ये क्या है? मदर है, और ये कौन है? फादर है।
सो इनके कितने किड्स है? अभी काउंट करके मुझे बताओ, हाउ मेनी किड्स दे डू हैव? 4 4। वेरी गुड, समझ में आ गया इसका मतलब। नाउ मुझे बताओ कितने किड्स की शादी हो रखी है? 2 2 की हुई है। और उन 2 के में अगर मैं मेल की बात करूं तो उनके ऑफस्प्रिंग्स कितने हैं? 3 और दूसरे जो फीमेल की शादी हुई है उसके ऑफस्प्रिंग्स कितने हैं? 3 वेरी गुड। अब पहला हमारा क्या था कि अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैव एटलीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट। अभी देखो ये जो 4 ऑफस्प्रिंग्स है, ये जो कपल है उनके 4 ऑफस्प्रिंग्स है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट उन्होंने क्या बोला? अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैव एटलीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट, है ना? एग्री कर रहे हो? एक पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट देखो, एक चीज याद रखना कि phenotype generally appears every generation। generally मतलब मैंडेटरी नहीं है, ठीक है? मैंडेटरी मतलब कंपलसरी नहीं है। तो ये देखो, ये जो कपल है इसकी फर्स्ट जनरेशन है, इनके जनरेशन में 2 लोग अफेक्टेड है। अभी 2 अफेक्टेड में से देखो ऑब्वियसली अनअफेक्टेड। अभी यहाँ पे देखो एक और पॉइंट था यहाँ पे कि 2 अनअफेक्टेड पेरेंट्स विल हैव अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। एग्री? ये अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है। सपोज ये का भी कपल होगा ना, ये इसके साथ मेटिंग हो रही है तो ये कपल हो जाएगा। इनके जो ऑफस्प्रिंग ये दोनों अनअफेक्टेड है, तो इनके जो ऑफस्प्रिंग है दे विल बी अनअफेक्टेड, इजंट इट? नाउ अगर यहाँ पे ये अफेक्टेड है तो जो ऑफस्प्रिंग होगा उनमें से भी एक अफेक्टेड होना चाहिए। एग्री और नॉट? यस मैम। ओके, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज दी है कि ट्रेड्स डू नॉट स्किप जनरेशन। देखो ये इस कपल की ये जनरेशन है, उनमें कोई ना कोई अफेक्टेड है, ठीक है? इसका तो क्या है कि दोनों ही अनअफेक्टेड है तो ऑब्वियसली ऑफस्प्रिंग में भी अनअफेक्टेड होगा। इसमें क्या है कि ये दोनों मैटिंग कर रहे हैं, मैटिंग के बाद जो जनरेशन आ रही है उनमें भी कोई ना कोई अफेक्टेड है। मतलब कि जैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट में कहा गया था कि कोई एक तो कोई भी जनरेशन ट्रेड को स्किप नहीं कर रही है, तो हर जनरेशन में हम लोग कोई ना कोई ट्रेड ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट। ये क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर और नॉट? यस मैम। ऑटोसोमल डोमिनेंट का Yes. देखो एक और चीज है, आप लोग जब यहाँ पे पढ़ लेते हो ना तो वही सेम चीज एक बार गो थ्रू कर लिया करो बुक में जाके कि क्या है। सो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और ये तो रिकॉर्डेड क्लासेस है, अगर नहीं भी समझ में आता तो अगेन गो बैक टू द क्लासेस, एक बार उसको वीडियो को समझ लो, सुन लो, सो यू गेट अ क्लियर आइडिया अबाउट इट। ऑटोसोमल डोमिनेंट क्लियर हुआ बिकॉज अभी ये जो क्राइटेरियाज है आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ डायग्राम दिया जाएगा एंड यू हैव टू डिसाइड वेदर इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है? नेक्स्ट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव में पहला क्या है कि अनअफेक्टेड पेरेंट के पास अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स कैसे है? ये वाला डायग्राम देखो, ये पेरेंट्स बी वाला डायग्राम है। पेरेंट्स कैसे अफेक्टेड है और अनअफेक्टेड है? यस, पेरेंट्स अफेक्टेड है या अनअफेक्टेड है? Unaffected. वेरी गुड। बाकी को क्यों नहीं आ रहा है? देखो अफेक्टेड का मतलब ये डार्कन होना चाहिए, ये पार्ट दोनों में से कोई भी एक डार्कन होना चाहिए अफेक्टेड के लिए। दोनों ही कलर्ड नहीं है, इसका मतलब क्या है? दोनों ही अनअफेक्टेड है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अनअफेक्टेड, पहला क्राइटेरिया हमें ये बोल रहा है कि अनअफेक्टेड पेरेंट्स मे हैव अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। तो इनके ऑफस्प्रिंग्स कितने हैं? 4 ऑफस्प्रिंग्स है, उनमें से 2 ऑफस्प्रिंग्स तो अफेक्टेड है। इसका मतलब अभी मैं आपको आगे की नॉलेज दे रही हूँ, लेकिन इतना याद रखना कि इसका मतलब ये कैरियर है, ये कैरियर है। और इनके क्रॉसिंग के बाद इनके जेनरेशन में जो इनका जेनरेशन आई है उनमें वो चीज डोमिनेट हो गई है, और डोमिनेट होगी इसका मतलब वो अफेक्टेड हो गई है। समझ में आया? नेक्स्ट थिंग उन्होंने क्या बोला था कि
generally traits are controlled by the recessive gene। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर ट्रेट, ये देखो इनमें जैसे ये है ना, ये ट्रेट्स जो है, जैसे ये ट्रेट्स हो गया, तो ये ट्रेट्स जो है जनरली किससे, रिसेसिव जीन कैरी कर रहा है। तो यहाँ पे सब ठीक है, सब में क्या होता है कि कुछ में डोमिनेंट जो है वो उससे क्या होती है, डिजीज होती है, और कुछ में क्या रिसेसिव होती है, उससे डिजीज होती है। तो अलग अलग चीजें हैं, तो कैसे कैसे आगे देखेंगे। नेक्स्ट थिंग है कि बोथ मेल एंड फीमेल आर इक्वली अफेक्टेड। फिर इन्होंने क्या बोला है कि अगर मैं क्रॉसिंग करता हूँ तो मुझे 3:1 रेशियो मिलेगा, और उसमें भी 3 वुड बी नॉर्मल, 1 वुड बी अफेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अभी मुझे बताओ कि यहाँ पे तो 4 पीपल से उनमें से 2 अफेक्टेड है और 2 नॉर्मल है, फिर ये कैसे फॉलो कर रहा है, सोचो एंड मुझे आंसर देना इसका। ठीक है, और जैसे बताया मैंने कि affected parents की kids will be affected but unaffected के भी affected हो सकते हैं। ये आपका है सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव का एग्जांपल। क्लियर है? यस मैम। अभी नेक्स्ट क्या है मैम हाँ जी बोलो। मैम हमें बोला था ऑटोसोमल रिसेसिव में 3:1 का रेशियो यूज होता है। वही तो मैंने क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पे तो 4 है, 4 ऑफस्प्रिंग से उनमें से 2 अफेक्टेड है, 2 अनअफेक्टेड है, तो ये तो 1:1 रेशियो हो गया। सोचो और मुझे बताओ। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या दिया था मैंने आप लोगों को, पॉलीडेक्टाइल क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अभी ना आपको 2 टाइप के डिसऑर्डर्स पढ़ने। ठीक है, 2 टाइप के डिसऑर्डर्स पढ़ने, एक तो मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होगा, मेंडेलियन डिसऑर्डर विल डील विद वन सिंगल जीन के साथ डील करेगा। तो उसमें ऑब्वियसली मेंडेलियन डिसऑर्डर है, इसका मतलब मेंडल ने जो प्रिंसिपल्स पुट किए हैं दे विल डेफिनेटली फॉलो दोस प्रिंसिपल एंड दे कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय एनालिसिस। तो आज मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगी, सो आपको मेंडेलियन क्रॉसिंग या मेंडल जैसे यूज करता था ना मेंडेलियन प्रिंसिपल्स टू do the crossings and then get the results, in the same way you have to do the crosses। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स किस में के अंडर हमें क्या क्या पढ़ना है, दैट इज हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोनुरिया, थैलेसीमिया। इसमें से सिर्फ आप सिस्टिक फाइब्रोसिस नहीं पढ़ते हो, बाकी सारी चीज आप लोग पढ़ते हो। तो हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया थोड़ा थोड़ा मैंने बता दिया है। हीमोफीलिया में क्या होगा, हीमोफीलिया सिकल सॉरी ये दोनों बता दिए। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होगा, एक पर्टिकुलर कलर ही वोंट बी एबल टू आइडेंटिफाई। और आप में से कुछ लोग होंगे जिनको ऐसे कलर ब्लाइंडनेस होगा, ग्रीन और ब्लू कलर में डिफरेंस समझ में नहीं आता होगा, कभी ऑब्जर्व करना। देन फिनाइलकीटोनुरिया क्या होता है, फिनाइलकीटोनुरिया जनरली इनबॉर्न जो किड्स होते हैं ना उनमें ये डिजीज होती है, तो किसी म्यूटेशन हुआ होता है अमीनो एसिड्स का। तो अभी एक चीज, अभी देखो यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को सिस्टिक फाइब्रोसिस आपको एक्सप्लेन नहीं किया, बाकी सबके बारे में यहाँ नॉलेज दिया। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है कि ये एक एक्सोक्राइन मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब एक हेरिडेटरी मतलब आपके पूर्वजों से ये डिजीज आप डिसऑर्डर आया होता है। कैसे होता है पता है, ये आपके एक्सोक्राइन का अफेक्ट जो होता है ना, ये मेनली अफेक्ट योर एक्सोक्राइन ग्लैंड। जिनको ये होती है उनमें क्या होता है, जनरली उनकी जो म्यूकस ग्लैंड होती है तो वो उनका म्यूटेशन हुआ होता है, तो दे जनरली सीक्रेट मोर म्यूकस सीक्रेट करने के कारण पेनक्रिएटिक डक्ट, ये जो डक्ट होती है इनमें ब्लॉकेज होता है, बिकॉज म्यूकस तो ऑल ओवर बॉडी जनरेट हो सकता है ना। तो उन म्यूकोस को कलेक्ट करके, गॉबलेट सेल्स जो होते हैं म्यूकोस को कलेक्ट करते हैं, तो वो सेल्स जो होते हैं वो बहुत ही कम होंगे या एब्सेंट होंगे। सो देयर जो म्यूकस सिक्रेशन का काम होगा
वो परफॉर्म नहीं होगा, जिसके कारण म्यूकस का सिक्रेशन होगा भी तो क्या होगा कि उनको कम करने वाला एक्सेसिव में वो सीक्रेट होगा और उसको कंट्रोल करने वाला कुछ नहीं होगा। तो स्लोली स्लोली क्या होंगे, जो ऑर्गन्स होंगे, जो आर्टरीज वेन होगी, दे स्टार्ट ब्लॉकेज। सो उनमें क्या होगा, ब्लॉकेज हो जाएगा और उसके कारण रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के चांसेस है। ठीक है, अभी देखो ये हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर में हेमोफीलिया। आप लोग जानते हो क्वीन विक्टोरिया को? क्वीन विक्टोरिया को जानते हो? मैम 1 या 2? 1 सबसे पहली वाली, जिसके पास अपना कोहिनूर है। यस मैम। यस मैम। सबको पता है, उसको पता है हीमोफीलिया है। अभी देखो ये होती क्या है डिजीज। तो जैसे मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा आइडिया दिया है, तो यहाँ पे ना प्रोटीन्स होते हैं, कैस्केड यहाँ पे लिखा हुआ है। कैस्केड वर्ड लिखा हुआ है, कैस्केड ऑफ प्रोटीन। तो जनरली पता है जब हमारे देयर इज वन सिंगल प्रोटीन that is a part of that cascade, a single protein that is the part of that cascade protein. Cascade protein का मतलब group of proteins, bunch of proteins. So उनमें से एक प्रोटीन है जो that is involved in the clotting of blood is affected. So वहाँ पे म्यूटेशन हुआ है, तो जिसके कारण ना ऐसे इंडिविजुअल को एक सिंगल कट में ट्रिमेंडियस फ्लो होता है, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग हो सकते हैं। ठीक है, तो जो क्वीन विक्टोरिया की जो पूरी फैमिली है ना, उनको क्या है, हेमोफीलिया है। पहली बात तो ये याद रखने की सेक्स लिंक एक रिसेसिव डिजीज है। नेक्स्ट थिंग कैसे याद रखना है, यहाँ पे एक मिनट, देयर इज दैट डायग्राम। ओके, तो इसको किस तरह याद रखना है कि हम लोगों को हेमोफीलिया का हाँ, तो अभी यहाँ पे जो फीमेल जो होगी, आई रोट समथिंग एल्स फॉर दिस, इट इज नॉट कमिंग। ओके ठीक है, मैं समझा दूंगी आपको। देखो इसमें क्या होता है कि फीमेल कैरियर होती है, फीमेल कैन नेवर बी हेमोफिलिक। कैसे, देखो फीमेल के पास कौन से क्रोमोसोम्स होंगे, XX। ठीक है, तो XX को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगी X और ऊपर छोटा सा H लिखूंगी और X। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि फीमेल विल बी कैरियर, शी वोंट बी अफेक्टेड। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिजीज ट्रांसमिट फ्रॉम द अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी। समझने की कोशिश करो, बाद में नहीं समझना इसको। अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल, कैरियर का मतलब शी कैरी द जीन, शी कैरी द जीन फॉर द हेमोफीलिया, बट शी इज अनअफेक्टेड, शी इज जस्ट कैरियर। बट यही कैरियर मतलब मैं अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहूंगी तो एक्स रिप्रेजेंट करूंगी, कैरियर है तो उसके ऊपर छोटा सा एच लिख दूंगी, सो शी विल बी द कैरियर। बट फीमेल कब हीमोफिलिक होगी, इट इज रेयरली, इट इज जनरली रेयर। व्हाई इट इज रेयर, बिकॉज जो मदर होगी उस फीमेल की, शी शुड एटलीस्ट, पहली बात तो शी शुड बी ऑब्वियसली शी विल बी कैरियर, बट उसके फादर को क्या होना पड़ेगा, हेमोफिलिक, हेमोफिलिक होना पड़ेगा। अभी मुझे एक बात बताओ कि पेरेंट्स में अगर एक छोटा सा, पहली बात तो अगर मैं क्रॉसिंग करती हूँ XHX का, क्रॉसिंग करती हूँ XY के साथ, जल्दी से फटाफट क्रॉसिंग करो और मुझे बताओ क्या क्या मुझे मिलेंगे उसके प्रोडक्ट्स, जल्दी बताओ। X और उसके ऊपर स्मॉल h लिखो X, और नेक्स्ट मेल में क्या लिखूंगी XY, और क्रॉसिंग करके मुझे बताओ क्या क्या मेरे को उसके गैमेट्स मिले। जल्दी क्रॉसिंग करो, जैसे मैंने पुनियट स्क्वायर सिखाया था उस तरह क्रॉसिंग करो। किया क्रॉसिंग? चार मिलेंगे, देखो कैसे होगा, XHX और XY। तो पहला मुझे क्या मिलेगा, दैट वुड बी XHX। ठीक है,
दूसरा मिलेगा XHY, तीसरा मिलेगा XY और चौथा मिलेगा XX मिलेगा, देन XY मिलेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट थिंग इज आप लोगों को याद रखना है कि अभी उसमें मुझे जो मिले उनमें से दो जो है, एक को तो हीमोफीलिया हुआ है, ठीक है, वन वुड बी मेल दैट इज अनअफेक्टेड, अदर विल बी व्हाट, दैट विल बी कैरियर भी नहीं होगी, शी विल बी अनअफेक्टेड फीमेल, ठीक है। और एक जो होगा XHY उसमें वो मेल होगा, और दूसरा जो होगा दैट वुड बी XHX, मतलब शी वुड बी कैरियर। इस तरह मुझे मिल रहा है, सबको मिला? यस यस मैम। एक मिनट, कितने लोग हैं पहले मैं जानती हूँ। मैम एक डाउट था मैम, बोलो बोलो, मैम फीमेल क्यों अफेक्ट नहीं होती हेमोफीलिया से? बताती हूँ बताती हूँ, पूरा समझाया नहीं है, एक मिनट। वेयर आर अदर, only 6 students are there. Where are other? Rest 15 students are there, right? 15 students में से rest है 6 है, 9 students कहाँ चले गए? 3 3 6, ठीक है, it's up to them. Okay. अब भी देखो, क्वेश्चन है कि why female cannot be hemophilic. देखो ये जो डिजीज है ना, ये जनरली एक प्रोटीन में हुई है, एक प्रोटीन के कारण, मतलब सिंगल प्रोटीन पे हुई है, जिसके कारण फीमेल्स में वो दिखता ही नहीं है। ये आया है तो फीमेल कैरियर है। फीमेल्स को हेमोफिलिक होने के लिए पहले जब स्टार्टिंग में वेरी फर्स्ट फीमेल जो आई थी, शी गॉट, उसके सिंगल प्रोटीन में म्यूटेशन हुआ है, ठीक है, सिंगल प्रोटीन में म्यूटेशन हुआ है, जिसके कारण शी बिकम द कैरियर। बट फीमेल को हीमोफिलिक होने के लिए मेल प्रोजेनी, मेल पेरेंट का या फादर का हीमोफिलिक होना जरूरी है। और अभी मुझे बताओ कि हीमोफिलिया का मतलब होता है कि जो प्लेटलेट्स है, जो प्रोटीन क्लॉटिंग में मदद करते हैं, वही अगर अफेक्टेड है तो मुझे बताओ, एक सिंगल जो न्यूबॉर्न बेबी में भी जो कट लगेगा, विल दैट ब्लड बी एबल टू रिस्ट्रेन इन दैट बॉडी ऑफ दैट बॉय? एक No, सिंगल ma'am. कट भी नहीं होगा। तो अगर ब्लड ही नहीं प्रेजेंट होगा तो विल दैट बी न्यूबॉर्न बी एबल टू सर्वाइव? नो मैम। वो सर्वाइव ही नहीं हो पाएगा, बिकॉज आपको पता है ये हर महीने जैसे जब जब कट हुआ तब तक आपको इंजेक्शन लगानी पड़ेगी प्लेटलेट्स की, तब जाके वो ब्लड रुकेगा। मैं आपको बताती हूँ ये क्यों इन्होंने विक्टोरिया का एग्जाम्पल दे रखा है। और सिंगल प्लेटलेट्स की इंजेक्शन लैक्स एंड करोड्स में आती है। तो क्या स्मॉल फैमिलीज के विल दे बी एबल टू अफोर्ड दिस इंजेक्शन एवरी डे? बिकॉज कट occasionally तो नहीं आएंगे ना, कट कभी भी लग सकता है, isn't it? Isn't it? यस मैम। इसीलिए, और क्वीन विक्टोरिया तो इज अ वेरी मिलीनियर, शी इज वेरी रिच वुमन ना, सो शी कैन अफोर्ड, दैट्स व्हाई अभी तक उसकी दिस जनरेशन चल रही है, बिकॉज उनमें ऑल females, specifically I am talking about males, because males will be affected, females तो will be carrier। जो मेल्स होते हैं उनमें they provide injections for the platelets का इंजेक्शन। इसीलिए कहा जाता है कि जनरली जो मेल अफेक्टेड मेल्स होते हैं वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं। समझ में आया? यस मैम। इसी को कहा जाता है कि फीमेल जो है ना, कैरियर फीमेल के ट्रांसफर दिस डिजीज टू सन, नॉट टू द डॉटर। अंडरस्टूड? अभी नेक्स्ट चलते हैं। मैम अगर बोलो। मैम अगर अफेक्टेड मेल और अनअफेक्टेड फीमेल का कोइटस हुआ तो? करो ना, क्रॉसिंग करो और मुझे रिजल्ट बताओ। तुम्हारे हर क्वेश्चन का जवाब है। अच्छा ठीक है, आपने बोला अफेक्टेड,
अफेक्टेड कब होगी? अफेक्टेड कब होगी? अफेक्टेड में अफेक्टेड दोनों मेल और अनअफेक्टेड फीमेल। अनअफेक्टेड, ठीक है, करो क्रॉसिंग करो फटाफट से, XX और अफेक्टेड मेल ना, अफेक्टेड मेल की बात कर रहे हो अथर्व? हेलो अथर्व, इधर आ जाओ। यस इधर मैम। ये दिख रहा है स्क्रीन पे? स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके, यही है आपका क्वेश्चन, कैरियर वुमेन्स एंड हेमोफिलिक मैन, इज इट योर क्वेश्चन? नो मैम। Your question is something different, so try to understand this thing first and then we'll solve your question. Carrier female है, X and XH representation समझ में आई कैसे करनी है? यस मैम। Reply me quickly because till 40 we will be having, so this topic तो at least अच्छे से complete हो जाए. Okay, XX का gametes form करो, X और XH form हुआ, similarly XH और Y, तो XH और Y gametes form हुए, ठीक है। अभी मुझे क्रॉसिंग करनी, क्रॉसिंग करने के बाद मुझे ऐसा कुछ मिला, क्रॉसिंग तो कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन करनी है, जस्ट अ मल्टीप्लिकेशन। नाउ देखो इसमें X और XH है, शी विल बी द कैरियर डॉटर, X और XH है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हीमोफिलिक डॉटर भी होती, एक्चुअली यहाँ पे बोथ XH होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे क्रॉसिंग करेंगे तो XH है, तो वो हीमोफिलिक डॉटर होगी, शी विल डाई, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो XY, जब मैंने क्रॉसिंग किया XY नॉर्मल सन होगा और यहाँ पे एक हेमोफिलिक सन होगा, तो रेशियो 1:1 रेशियो मिल रहा है, ये दोनों अनअफेक्टेड, ये दोनों अफेक्टेड है। हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन बोलो अथर्व। हेलो यस मैम, आंसर बस मिल गया मैम। मिल गया, क्रॉसिंग की? यस मैम की मैम, पता चले? अनअफेक्टेड होंगे सारे। हाँ, तो जब आप ऐसा क्वेश्चन आता है तो फटाफट से क्रॉसिंग कर लो, यू अल्टीमेटली गेट योर आंसर, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारे पास, ये तो हो गया कलर ब्लाइंडनेस, ये तो हो गया आपका हेमोफीलिया। तो हेमोफीलिया का आपको पता होना चाहिए कि फीमेल इज विल ऑलवेज बी कैरियर, ठीक है। अगर फीमेल अगर होती भी है अफेक्टेड तो शी वोंट बी एबल टू सर्वाइव मोर, इसके लिए फादर को भी अफेक्टेड होना पड़ेगा। नेक्स्ट है कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस, इससे पहले जो हमने पढ़ा हेमोफीलिया, दैट इज आल्सो सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, तो ये भी जो है सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। नेक्स्ट थिंग कि जनरली जो कलर ब्लाइंडनेस का जीन है वो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट थिंग क्या है कि दैट पर्सन इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश आइदर ऑफ ग्रीन और ऑफ रेड कलर, ठीक है। जिसके कारण आप लोग देखना कभी कि दूर से अगर ग्रीन और रेड कलर लगाया, इफ यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश then you don't have color blindness, but not if you're not able then आपको color blindness है। तो ये भी यहाँ पे एक फैक्ट है, हाँ ये फैक्ट है। And what is it? 8% of males see generally this color blindness is occur mostly in males than females, because in females 0.4% of females को होता है and 8% of males को होता है। तो ये एक चीज याद रखना, the gene that codes for the red green color is affected are on the X chromosome। अभी एक बात बताना, यहाँ पे लोगों ने शो किया हुआ है कि XX हुआ तो नॉर्मल फीमेल है, XC ये जो C नीचे मैंने लिखा है ना, दैट शुड बी जस्ट बिहाइंड दैट X, ऊपर होना चाहिए स्मॉल लेटर में X। सो इफ इट इज सो देन दैट इज कैरियर फीमेल, ठीक है। और अगर XY है तो नॉर्मल मेल, अगर XC है देन कलर ब्लाइंड फीमेल होगी, और XC और Y है तो कलर ब्लाइंड मेल होंगे। तो अभी मुझे एक बात बताओ,
Y अगर X है, ठीक है, तो कैरियर फीमेल है, तो Y कैरियर फीमेल हैव अ नॉर्मल विजन. मैम क्योंकि उसमें सिंगली प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन तो हीमोफीलिया में कंसीडर कर सकते हो ना. प्रोटीन या प्रोटीन की क्या बात हो रही है यहाँ पे? तो जो कलर का जीन है वो अफेक्ट हो रहा है. वहां पे तो bunch of proteins that are responsible and that plays important role in the clotting of blood is affected na. Here the gene for the color is affected. There's a difference between both, isn't it? मैम पर यहाँ पे एक ही क्रोमोसोम अफेक्टेड है, इसलिए शायद से नॉर्मल विजन. देखो इसका आंसर ये होगा कि XCX है, तो इसमें जो XC का अफेक्ट है that is suppressed by her matching dominant normal gene. तो जो X जो है ना, normal X, that is dominant over here and that is suppressing the effect of XC. Got my point? देखो now you have to क्रॉसिंग तो समझ में आई ना. अब फटाफट से क्वेश्चन लिख लो, फटाफट से. वर्क आउट अ क्रॉस टू शो जीनोटाइप एंड phenotype of offspring in the following. Work out a cross to show genotype and phenotype of offspring for the following. Have everyone wrote it? यस मैम. First लिखो. Normal man marries with carrier woman. Normal man marries with carrier woman. हीमोफीलिया के लिए है. Then second, colorblind man marries a normal woman. Colorblind man marries a normal woman. Third is colorblind man marries a colorblind woman. लिख लिया? Done? यस मैम. Yes, ma'am. Now what you have to do, इसका क्रॉसिंग करके ना मुझे गूगल क्लासरूम पे आप लोगों को भेजना. लास्ट टाइम ओनली वन गर्ल हैड सेंड मी दैट थिंग. सो आपको ये करना है. अभी नेक्स्ट क्लास आई थिंक विल बी हैविंग फ्रॉम 7 to 8:30. Am I right? मैम उसमें Yes. टाइमिंग मैम आप चेंज कर सकते हो क्या मैम, क्योंकि 8 o'clock के बाद मेरी एनडीए की क्लास है. But, इससे पहले आप लोगों की क्लासेस शेड्यूल्ड है ना, यस मैम. so I can't shift. You can join, you can leave the class because उससे पहले मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा. I'll be starting the introduction for the molecular basis of inheritance. So I'll be repeating that thing in the next lecture as well. So from 7 to 8:30 if you attend, then it also it would be okay, because we will be having only half an hour more class. यस मैम. Okay, so we'll stop here because you guys will be having your physics lecture. Am I right? यस मैम. Yes, ma'am. So do one thing, you just now can leave the class and attend that class, and make sure that do the homework, and some more homework will be provided in the next lecture. Submit that homework. And one more thing, that
go through whatever I taught, because if you go through the notes precisely, you would not leave any question. So now you can leave the class. Thank you so much, and we'll meet by 7. Thank you so much.